because this is the different situation and he wants some sensation. And here we go, ball one of the table championship, chipped away down the ground by Ilyas Jani, and he's off and running with a single bit of effort by the fielder, but only one run taken, and TM will be on strike now. जी हाँ, अलमुर्तज़ा सीसी तौसा वर्सेस वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के दरमियान पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप का पहला मुकाबला सीजन 1 है और जनूबी पाकिस्तान के शहर को सिलेक्ट किया गया है। डीएचए का ये खूबसूरत तरीन ग्राउंड पहला बॉल हुआ है और डिफेंसिव अंदाज में यहाँ पे खेला था इलियास जानी ने। तैमूर मिर्जा यहाँ पे थोड़ा सा कोई कंसर्न है वो रेज कर रहे हैं। लाइट का मेरे ख्याल से इशू है, ये जो लाइट्स ग्राउंड में हैं उनकी वजह से बैट्समैन थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। Now, what I'm seeing here, there's a distraction in the eyes of TM on the side screen. So there is an extra light switched on right next to the side screen, and that is causing a little bit of worry in the sighter of TM, the batsman, and he has asked the umpire to sort it out. It'll take some time, and he wants to make sure that everything is in order before he gets going, because we all know he wants to keep his eyes on the ball, and he reads the ball from the hands of the bowler. This is the quality of TM. I've noticed he has such a fast hands, very wide range of strokes, but on the other hand, what gives him the added spark in his batting, he reads the bowler from the hands. That's why he picks the length early, and he's gonna be a tester, and fingers going up, would you believe? Oh, TM can't believe it, but we have a wicket. Look at the disbelief in the face of TM. He is asking question to the umpire, but he has to leave the arena. Well, drama already. It's only the first over, and it's all happening here in Multan. The TM, the big fish, is gone. जी हाँ, आउट दे दिया गया है अंपायर्स की जानिब से। तैमूर मिर्जा बिल्कुल एग्री नहीं है इस डिसीजन से और एहतजाज कर रहे हैं अंपायर सरशबाज कालिया से। बहरहाल बड़ा नुकसान यहाँ पे तैमूर मिर्जा की सूरत में। 7 रन्स पर पहला विकेट इनाम लेफ्टी ले उड़े। Well, he didn't want to leave the crease at all, TM. Have a look at that. He's a goner. TM removed from the scene very early in the piece, in the very first over. Big wicket for the boys of Tonsa. बड़ी जबरदस्त कामयाबी समेटी है यहाँ पे अलमुर्तज़ा सीसी तौसा के बॉलर ने। पहले ओवर के 4 बॉल्स हो चुके हैं और ये देखिएगा, और ये बड़ी जबरदस्त अपील की गई थी कीपर की जानिब से। Yeah, it was a close call, but we don't have the sneakometer to tell you what happened exactly. TM didn't believe the outside edge at all. He thought that he didn't hit the ball. In walks the left-hander. Take a look at that. Still not settled, TM in the dugout. Very angry. He's livid. He's talking to Falak Sher, one of his fast friends there in the dugout. And Wasim Lefty, he's known as Ustad of TM, walks to the center. जी हाँ, शागिर्द को आउट किया तो उस्ताद आए हैं और यहाँ पे वसीम लेफ्टी को भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं इनाम लेफ्टी। और बहरहाल बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कामयाबी समेटी है इनाम लेफ्टी ने। एक बड़ा तगड़ा प्लेयर तैमूर मिर्जा रिमूव किया। 5वां बॉल है। Was lucky on quite a few occasions, couple of occasions, what I've noticed, because he's bowled full tosses, and in tight bowling a full toss, no matter at which pace you can bowl, can be a very big mistake at times, but not tonight. It's the success going the bowler in arm's way at the moment. Oh, that was a top edge, bisected, eluded the wicket keeper, and the short third
the short fine, whatever you call it. Kalimullah was very fine, so he was able to take care of that stroke, and that is the end of the over. A successful over by Inam. Lefty wicket in that over. Well bowled, son, taking the big wicket of TM. इलियास जानी अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली रावलपिंडी में रिसेंटली, और 8 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मैच है, और यहाँ पे जिस टीम ने अपने की बैटर्स के साथ 8 ओवर्स खेल रही है, मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब रहेगी। Right then, they're going with the right armer instead. He's a bit of a slinger. Kalimullah comes all the way from Laya. He's played for the Lahore Qalandar trials as well. Very fast, and when he gets it right, he can be a tough customer to handle for the batters. Ilyas Jani will be on strike. Second over of the innings. Nicely bowled, chopped on nearly. This is a good start by Salinga. जी हाँ, अच्छी शुरुआत कलीम की जानिब से। लैया से ताल्लुक है, बड़ी मेहनत एफर्ट रही है इनके करियर में। क्रिकेट बॉल में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग साउदर्न पंजाब की जानिब से भी अपना फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, और लाहौर कलंदर में भी इनके जो ट्रायल्स हैं वो हुए हैं, और लाहौर कलंदर का कैंप भी ज्वाइन किया था। दूसरा बॉल करवाएंगे। Look at that shape away with the pace. I told you before that when he gets it right, he can be very tough. And that really was like a spitting cobra. जी हाँ, तेज बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल लेंथ यॉर्कर बॉल, और वसीम लेफ्टी बिल्कुल समझने में नाकाम। बेहतरीन शुरुआत अलमुर्जा सीसी तौसा की जानिब से। Shodawani bowls and gets tonked handsomely. The left-handers blow for 6, and it's a beauty by Wasim. जी हाँ, काफी परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि पहला छक्का लगा है, अभी शुरुआत हुई है। दराज कामत बॉलर हैं कलीम। Can't afford to bowl short to this lad. Wasim, very experienced, erring in line. Good effort by the wicket-keeper there. Certainly saved few runs there because that ball was travelling down the leg side, just losing a plot a little. The bowler Kalimullah comes all the way from Kot Sultan Laya. जी हाँ, एफएस जनूबी पंजाब में टूर्नामेंट है, और जनूबी पंजाब के जो हीरोज हैं इन टेबल वो नजर आ रहे हैं। काफी अरसे के बाद इस सरजमीन पर यह टूर्नामेंट तोहफा है। Ilyas Jani this time pulls that into the crowd over mid-wicket for the maximum. Second 6 in the over, proving a touch expensive. Kalimullah, after that brilliant over by Inam, who took the great wicket of TM, now a little bit of initiative, momentum shifting towards the batting side. Have a look at that, short, and he pulled it behind square. Beg your pardon, I thought it was going over mid-wicket, but it was into the square leg boundary for the maximum. But what a pull shot by Ilyas Jani nevertheless. दो छक्के आ चुके हैं इस ओवर में, और 15 रन्स दे चुके कलीम मलिंगा। एक बार फिर से इलियास जानी सामना करेंगे। वाह, वंडरफुल कनेक्शन, एक और कमाल का छक्का। No matter how fast you bowl, if you bowl in the slot, this is what is going to happen to you.
That one went into the stands. That would have been 6 anywhere. That was a big heave, huge hit by Ilyas Jani. Have a look at that. In the slot. Thank you very much. See you later. Off she goes for a half a dozen into the night sky and then sailing into the crowd. जी हाँ, 21 आ चुका है. लास्ट बॉल अभी बाकी है. इलियास जानी ने शुरुआत कर दी है. इस बार बिल्कुल रास्ता दिया है बॉल को. 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़े और यहाँ पे 2 रन मुकम्मल करेंगे. 23 रन आए हैं इस ओवर में. Yeah, expensive second over done. 32 for 1 after 2. Gujranwala. Well, Ayub, it's a very good initiative taken by the great Ali Threen. He has stepped into table cricket. We all know that he has been the owner of Multan Sultans in the HBL PSL for good 10 seasons, and now he has just stepped back from there, from the cricket ball, and now he has chipped into this type ball, and this is going to be absolutely something very amazing for the fate of tape ball. And I'm telling you, it's a great news for the tape ball fraternity that the great sponsor like Ali Threen has stepped into it, and he's absolutely showing his great interest. He's here in the ground, he's present, showing full interest, and this is going to be absolutely something very big, and this is going to go beyond the borders. I'm telling you, the tape ball from Pakistan. GFS टेप बॉल की जानिब अली तरीन का आना टेप बॉल क्रिकेट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त कदम है, और देखते हैं इस टेप बॉल को उनके आने से कितना फायदा होता है. तीसरा ओवर, पहला बॉल. टकरी जानन को लाया गया है. कोयटा से ताल्लुक है और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं. अच्छी बात यह है एफएस के बलूचिस्तान कोयटा से एक प्लेयर मुल्तान के सरजमीन पर टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं एज प्रोफेशनल टेप बॉल प्लेयर. Yeah, you know, players from every corner of Pakistan you will witness here in Multan, and this is the beauty of tape ball. Down the leg side, losing the line. They are one through the offside, one through the onside. So this is not a good start for the youngster Takri Janan. Still early days for the youngster. It's a learning curve. But of late, I've seen him just losing the plot a touch. He's just trying to create a lot of pace, generate a lot of pace. Instead, he needs to work on his accuracy as well. If you are accurate and you have a kind of a lesser pace as well, still you can go with it. But if you just go for the pace, and in the process, if you lose the lineup control, then you're going to leak runs. जी हाँ, 35 रन, तीसरा ओवर. इस बार बेहतरीन कनेक्शन स्मैश किया है इलियास जानी फ्रॉम केपीके. Yeah, it was a hook shot by Ilyas Jani. He's a very good puller and hooker of the ball. Shot a one, he bowled and went all the way into the crowd for the maximum. He's looking good tonight after the departure of TM on 23 already of just 7 deliveries, Ilyas Jani. And a mini conference meeting there for the youngster Takri Janan, Sarmad Hamid and Muzammil Kamoki, the senior pros. Just giving him pieces of advice, asking him to just calm down. जी हाँ, पहले 2 ओवर दायरा के अंदर फील्डर थे और टकरी जानन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे थे. इस बार स्लोअर बॉल किया था. अच्छा कमबैक और यहाँ पे समझने में नाकाम. इलियास जानी कैश करना चाह रहे थे इस ओवर को. 41 रन हो चुके हैं पहले ओवर में. जस्ट 8 रन से दूसरे ओवर में 23 और तीसरे ओवर में अभी तक 2 बॉल्स पर 8 रन आ चुके हैं. Yeah, good change of pace by the youngster Takri Janan on that occasion. Nearly had a return catch because he was very early through his stroke, Ilyas Jani, the batsman. And you have to mix it up. This is what I was thinking as well as a bowler. You don't have to bowl pace all the time. Look at that. Another change of pace attempted, and outside the office stump doesn't get away with that because the umpire has
given it a wide ball, and rightly so, because that was way too outside the off stump. Should have been given as a wide. जी हाँ, यहाँ पे हमीद पठान एज विकेट कीपर फ्राइज सर अंजाम देते हुए कैच लिया था तैमूर मिर्जा का पहली ओवर में. Takri once again down the leg side, wide ball, pressure on Takri. Yeah, pressure mounting, and that was a horrible delivery, way too down the leg side. This is not required by the youngster. He's leaking runs here. Needs to take care of his lineup control. And I would say that after the departure of TM, it's a good recovery by the boys of Gujranwala, especially Ilyas Jani. He has really taken the bowlers to the cleaners. Very good puller and hooker of the ball. And the left-hander Wasim has joined. He is also a very good puller of the ball. And when the ball is in his slot, he doesn't waste any opportunity to put them away. Takri Janan, the youngster. Slow one, he bowled. This is up in the air, but doesn't carry to that fielder behind the keeper. That could have gone anywhere. Good change of pace. You need to mix it up, Ayub. Then you are going to get some sort of success. जी हाँ, टकरी अच्छा कमबैक किया था. एक्स्ट्रास पर कंट्रोल नहीं है. मुजम्मिल आए हैं समझाने के लिए. प्रोफेशनल क्रिकेट में जब आप अपनी एंट्री करते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्रेशर हैंडलिंग. आपके अंदर एबिलिटी जरूर होनी चाहिए. That is drilled like a train, and it burst through the hands of the fielder, threw mid off into the boundary like a flash. That really was hit with brutal power. इलियास जानी बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए 27 रन बना चुके हैं. 9 बॉल्स का सामना किया है और इस बार स्लोअर वन बॉल किया था. लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का देखने को मिला है यहां पे इलियास जानी के बल्ले से. Well, these boundaries are not big enough to test the biceps of the batsman Ilyas Jani. He's a big lad and he's really clearing them. These are short boundaries for his stature. I'm telling you, it was attempted slow delivery. He's picked it, played it late, and sent him over long on for the maximum. This is brilliant batting. He goes again, another one. Takri Janan under a huge pressure finishes the over in style, does Ilyas Jani. 3 gone, 61 for 1. Gujranwala on a roll here in Multan. 61 रन हो चुके हैं और इलियास जानी बिल्कुल माफी देने के मूड में नहीं है. बिल्कुल पूरी तरह नजर सेट है इलियास जानी की बॉल के ऊपर और लग ऐसे रहा है कि 8 ओवर्स पूरे खेलने के इरादे से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इलियास जानी. Yeah, mind you, it's an 8-over match and 140, 150 will be a very good challenging total. And it looks as if that they're going to get there the way they're batting, Gujranwala boys. 61 for 1 in 3 overs. So they really need to put the brakes on, and the only way is to pick up wickets for the boys in orange, for the boys of Tosa. Yes, fair enough, they have taken the wicket of TM very early in the piece. But on the other hand, this partnership which is building up is really causing a lot of worries for the bowling side. Who is going to come and put the brakes on? The time will tell. बड़ा जबरदस्त कमबैक. पहले ओवर में सिर्फ 8 रन, उसके बाद अगले 2 ओवर्स में 53 रन आए हैं. जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो
63 का है इनाम। एक बार फिर से इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर मौजूद, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। Yeah, just persisting with Inam, their premier bowler. No sign of Salman Bonair. Yes, it's an 8-over match. Every bowler will have the opportunity to bowl 2 overs apiece. But at the moment, what they're doing is they're not trying different things, in my opinion. They need to do something out of the box to do, to put the brakes on, to challenge this batting onslaught, which is going on at the minute. जी हाँ, इनाम वंस अगेन इस बार फिर से इलियास जानी सामने है। तेज बॉल किया था डाउन द लेग साइड और यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा इजाज अहमद जज्जा की जानिब से। Yeah, it was an innocuous delivery because it didn't have to do much to sway away from the line of that ball. The batsman Ilyas Jani, he's tried a slow one. He's got the typical tennis ball bounce in arm lefty. He's persistent with his slow balls because this is his go-to delivery, the slower in pace, the change of pace. Relies quite heavily on his slow balls. इनाम एक बार फिर से फुल लेंथ बॉल ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर मौजूद, लेकिन बॉल की रफ्तार तेज थी। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। ये बड़ा जबरदस्त मुकाबला इलियास जानी वर्सेस इनाम। Well, there were a couple of fielders on the square leg boundary and behind square, and the ball went right between the two. Take a look at that. He flicks him off the toes, beautifully executed, and bisected the field perfectly right in between those two fielders. There was a minimal gap, and he found that to perfection, the batsman. और इस बार बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से खेला है, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। 68 रन हो चुके हैं अभी तक, 3 बॉल्स पर 8 रन, बल्कि 7 रन दिए हैं इनाम लेफ्टी फ्रॉम मियांवाली ने। Oh, that was a beauty. Nearly through, right in the block hole. Well bowled, son. पहला ओवर अच्छा किया था इनाम ने, उसके बाद अगले 2 ओवर्स में 53 रन आए और एक बार फिर से इनाम को लाना पड़ा चौथे ओवर्स में, क्योंकि 8 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मुकाबला है और बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इलियास जानी। 13 बॉल्स पर 44 रन आ चुके हैं। Nicely bowled again, just only B1. So in 2 ball, singles don't damage the bowling figures of any bowler. But the batsmen, on the other hand, are looking to get those boundaries, those 6s and 4s. At the moment, this batting lineup is looking very dangerous, especially this partnership. The first wicket, mind you, was taken in the very first over, and after that, the great partnership building up here for Gujranwala. Smacked him hard, and smacked him into the hands. Now, this is absolutely brilliant stuff. He's one of their premier bowlers, and he's really proving a point tonight. Relies quite heavily, as I mentioned time and again, on his slow balls. That was one of his good deliveries. जी हाँ, रिव्यू यहाँ पे लिया गया है बल्लेबाज वसीम लेफ्टी की जानिब से और थर्ड अंपायर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मिठू भट्ट फ्रॉम सियालकोट। और मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद हमें टेप बॉल क्रिकेट में, इन प्रोफेशनल टेप बॉल क्रिकेट में 6 ओवर से ज़्यादा के जो मैचेस हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 8 ओवर्स पर मुश्तमिल, और यहाँ पे बल्लेबाजों को भी स्ट्रेटजी बनानी होगी, अपना एक प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करना होगी, जैसा कि इलियास जानी कर रहे हैं। Yeah,
in the past, when we used to play tape ball, there were 10 overs, you know. Then it really shortened by the passage of time. It came to 8 overs and now 6 overs. And it looks a little bit like a T10, T20 format, isn't it, in the cricket ball, you know. When you have an 8-over match, it looks like that there is an opportunity for everyone, you know, to make a comeback. So you have some time to spend in the middle as a player, as a batsman, and even an opportunity for the bowlers to bowl their quarter of 2 overs. Look at that again in the replay. It was a full toss, and they're checking for the height. The third umpire, it's the batter's review. The batter, Wasim Lefty, has reviewed that because it was caught, but it is given as out. So he will have to leave the arena, and it's a very good wicket again by Inam Lefty. He's proving to be their key bowler. 2 wickets taken by him. 4 done. It's 70 for 2. Right then, the departure of Wasim Lefty has brought Shoaib Buzdar to the wicket, a lad from Tausa. And to the com box, I've been joined now by Qamar. He comes all the way from Sialkot, and so it is Tausa versus Gujranwala, and end of the first power play, the mandatory power play. Qamar, what do you make of the situation so far? 70 for 2 Gujranwala in 4 overs. जी हाँ बिल्कुल सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपने इतना अच्छा इस्तकबाल किया आप अपने कॉम बॉक्स में और बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम तैमूर मिर्ज़ा एज आइकॉन के आउट होने के बाद 70 for 2 और इनाम लेफ्टी ने अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 15 रन दिए हैं और 2 बड़ी कीमती विकेटें हासिल की हैं अल मुर्तज़ा क्रिकेट क्लब तौंसा के लिए। तो ये अच्छा आगाज़ है इस टूर्नामेंट का भी और तैमूर मिर्ज़ा की वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला का भी। Yeah, Salman Baner now into the attack, coming as a second change bowler. He's a left-armer, comes all the way from Baner KPK. Recently has struggled a little bit, but we all know he's quite a capable customer. He has some pace, and he's tall as well, can get the ball to jump off the surface, and if he gets it right, he can ask some questions to the batters. Alias Johnny will be on strike. जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हाइट की वजह से इनका गेम जो है वो थोड़ा राइजअप भी होता है। सुलेमान लेफ्टी बुनेर का इस बार किनारा लगा, गेंद बाउंड्री से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। एक बार फिर अंपायर सर शहबाज कालिया जो है वो इस बात का तयन करते हुए कि ये गेंद ग्राउंड से बाहर पहुंची है। तो लिहाज जानी के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि तैमूर मिर्ज़ा के आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को पाँव पे खड़ा किया है वो काबिल दीद है अलियास जानी ने। Yeah, he really holds the key for the batting of Gujranwala and has played a blinder here so far. Very capable customer with the bat, Alias Johnny, experienced campaigner, and he's really showing his class with the bat tonight. Played brilliantly so far. जी हाँ, मुजम्मल कामों की बड़े कूल कस्टमर हैं और हमेशा अपने आप पे आसार रखते हैं। Have a look at that, nearly into the wickets there, right in the block hole, brilliantly bowled. Nearly had a wicket. Excellent bowling. Suleiman lefty from KPK. शोएब बुज़दार का जो पिछला सीज़न है बड़ा शानदार गुजरा है टेबल क्रिकेट में और
यहाँ पर इससे पहले अयूब आपके साथ मौजूद थे तो यही बात हो रही थी कि टेबल क्रिकेट में बहुत कम देखा गया है कि शॉर्ट फॉर्मेट में बड़े ओवर्स की गेम ये बड़ा अच्छा साइन है। अली तरीन साहब जो ओनर हैं मुल्तान सुल्तान के और बड़ी मशहूर और मरूफ फ्रेंचाइज रह चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग में। Oh, that is typical Buzdar. Don't bowl there in the slot and get the ball back, please. Go and fetch that, mate, he says to the bowler. What a player, Buzdar. Wow, that is wonderful flick of the wrist. And into the crowd, Shoaib Buzdar, first maximum in this tournament. Have a look at that. Bang! Wow! You have to be very careful with your lines and lengths when you're bowling to somebody like Shoaib Buzdar. He's in red hot form nowadays. I've seen him in a couple of tournaments in Karachi recently, just a couple of months back. He has been absolutely dynamic with his stroke making, and he has got very wide range of strokes as well. He can start from cover point and can end up behind square leg, even to fine leg, long leg region. So such a dangerous customer with the bat, Shoaib Buzdar. Oh, this time nearly got a nick. They're all up. The boys in orange, they're all up. They think they have their man. But the only man, umpire, the important man, was unmoved. Survives, does Buzdar. That really was a good delivery. जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा शानदार गेंद था। ये वही गेंद था जिसका कुछ मिनट्स पहले आप तस्करा कर रहे थे कि इनका गेंद जो है वो पढ़ने के बाद थोड़ा राइज होता है। तो ये लेफ्ट आर्म बॉलर्स की एफएस की खासियत है क्योंकि उनका गेंद जो है वो एंगल के साथ बाहर आता है। तो यकीनन प्री प्लान बॉलिंग की जाए राइट आर्म बैटर्स के अगेंस्ट तो इनको मजीद मदद मिल सकती है, जिस तरह रिसेंटली ये गेंद हमने देखा सुलेमान लेफ्टी का। And the other thing is he's a tall fellow as well. He's about 6'1", 6'2". So that's why he gets that extra bit of lift off the surface. Oh my word! That has gone many a miles! Get the ball back, please. That's another maxi. New ball, please. It is massive one by Shoaib Buzdar. Excellent. ये काफी ये पीछे फेंका गया गेंद था जिसपे पिल पड़े। शोएब बुज़दार महज 3 गेंदें अभी तक इन्होंने खेली हैं और 12 रन्स बनाए, 2 फलक शगाफ छक्के शोएब बुज़दार के बल्ले से, एक से बढ़कर एक। Two young guns up against each other. Buzdar from Tosa and Salman Bunair from Bunair, KPK. So this is going to be a very good contest. So far the winner is Buzdar, the batsman. He has made 12 runs of 3 deliveries, 2 maximums, 2 big hits. And it's going to be a freebie. Would you believe? It's going to be... Oh, what was the umpire? Kalia signaling. I didn't get that signal by the umpire, though. Sorry, folks, I didn't get that. जी आप ये सुपर बॉल का इशारा था और इस गेंद पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शोएब बुज़दार के लिए ये ऑफर लगाई गई है इस गेंद पर। Yeah, the runs will be doubled, will be multiplied by 2. Whatever runs he makes off this ball. Super ball then. Oh, it's a good delivery. Brushed the leg, brushed the trouser in the way through. Oh, I thought it brushed the trouser, but umpire has other ideas. He has given it a wide. And they're gone for a referral. They need a referral. The boys in orange. The boys of Tonsa need a referral. And they want to have another check. Because at first, you know, with the naked eye, I thought that one brushed the trouser in the way through. जी हाँ बिल्कुल, तौंसा की टीम का यही मानना है कि गेंद ने कहीं ना कहीं किस किया है ट्राउज़र को। हालांकि अंपायर का जो हतमी फैसला है वो
वो वाइड बॉल है। हमजा पठान विकेटों के पीछे खड़े हैं और ये हमेशा स्क्रीन की जीनत रहते हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं विकेटों के पीछे। शायकीन क्रिकेट की अच्छी खासी तादाद इस वक्त DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। Yeah, quite a few families in this DHA is Sports Complex ground, Multan. The Thai Bowl Championship, Pakistan Thai Bowl Championship is off and running. First match of the championship, and this is a great initiative taken by Ali Tareen. Right then, meanwhile, Kamar has been replaced by another young emerging commentator, comes all the way from Sadiqabad, Shoaib Mirza. Shoaib, what a start to this campaign, this Pakistan Thai Bowl Championship. And Ali Tareen is amongst the crowd in the middle. He's really giving his 100% and making his presence feel in Multan. At the moment, Alias Jani's on strike. Kalimullah, the ball nearly through. What a delivery! What a delivery! FS, thank you so much FS. और बहुत ज़बरदस्त आगाज़ यहाँ पर फराम किया है कलीम खान ने। कैप्टन ने उन पर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। पहले ओवर में जो है वो एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन एक अच्छा बॉलर जो है वो हमेशा वापसी करना जानता है और यहाँ पर की है। इलियास जानी ने पहला बॉल जो है वो भरपूर खतरों से लबरेज डिलीवरी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बाउंस बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर जी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। Yeah, quite right. Need to get it 100% right. Full toss of the toe end of the bat, nearly went all the way using the pace of the ball. Alias Jani gets his half a century in a style. Well played, Alias Jani. जी हाँ, पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का पहला बैटर इलियास जानी जो कि 50 रन्स बनाने में कामयाब हुए और अभी भी जो है वो क्रीज पर मौजूद है। क्या बैटिंग की है, क्या शॉट सिलेक्शन इनकी रही है। बहुत ही दीदा ज़ेब शॉट्स जो है वो लगाते दिखाई दिए ग्राउंड के चारों तरफ और अभी भी जो है वो 2.4 ओवर्स बाकी है। बहुत पूरे तमाम बैटिंग इलियास जानी की जानिब से। No, this one has been hit in the air. It's a chance. It's a chance. Has that been taken? Yes. Yes, yes. The fielder is claiming the catch. And Kalimullah, the bowler, has the last laugh. Alias Jani is gone, but not before entertaining this crowd here in DHA Multan. कैच कैप्ट किया, क्या कैच कैप्ट किया है। नजर रखी आखिर तक और सही टाइम का इंतखाब किया, जंप किया और झपटा ये कैच। यकीनी तौर पर ये कैच से आप देख सकते हैं इस टीम ने जो सेलिब्रेशन की है उसका अंदाजा किया जा सकता है। और मुश्किल क्या था, आसान नहीं था। ऐसे कैचेस यकीनी तौर पर अंडर लाइट्स जो है वो पकड़ने बहुत मुश्किल होते हैं। क्या हाई जंप है और इस मैच में यकीनी तौर पर वापस ला दिया कहीं ना कहीं इस कैच ने। Absolutely great catch right on the boundary line, and immediately he claimed after picking, he really plucked that out of the thin air, jumped it in the air and absolutely grabbed a beauty. And still waiting for the third umpire's decision then. Judge having a walkie-talkie out. जी हाँ, फील्डर जो है वो यकीनी तौर पर काफी पूरे एतमाद दिखाई दिए और इस कैच ने यकीनी तौर पर बहुत रिलीफ प्रोवाइड किया है। और एक लम्हा था जहां पर लग रहा था कि 170 160 प्लस रन्स आसानी से बनेंगे, लेकिन इस ओवर ने कलीम ने जो पहला बॉल डिलीवर किया वहां से उनके इरादे जो है वो वाजे हो चुके थे। बहुत ही भरपूर तरीके से जो है वो पेस का इस्तेमाल किया और जब पेस के साथ परफेक्ट यॉर्कर मिल जाए तो इससे अच्छा नहीं होता है। और अभी तक इंतजार किया जा रहा है थर्ड अंपायर के फैसले का। Yeah, you rightly pointed out, Mirza. He has three varieties. I know him personally. He comes all the way from Laya. Kalimullah is a bit of a slinger. He has played Lahore Qalandar trials as well back in 2018, 2019. And as we look at that again, it was a pull shot attempted by the batsman Alias.
And a beauty was taken at the boundary line by the fielder. Have a look at that. He really claimed the catch, but the umpire is still not making the decision, taking a lot of time. The umpire, and there comes the signal by the judge. The confirmation finger goes up. The batsman Johnny is gone now, officially out of the ground after making 53 of just 18 deliveries. क्या कैच है ये, यकीनी तौर पर वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में कंसीडर किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जब पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप के बेस्ट कैचेस की हाइलाइट्स बनेंगी, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो उसमें यह कैच भी होगा। और यहाँ पर तैमूर मिर्जा कैप्टन, उनकी पूरी टीम ने जो है वो बड़े ही भरपूर तरीके से इलियास जानी को जो है वो वेलकम किया। यकीनी तौर पर अपनी टीम को एक बड़े ही मुस्तहकम पोजीशन पर ला खड़ा कर दिया इलियास जानी ने। 2 डाउन पोजीशन पर जो है वो 3 डाउन पोजीशन पर जो है वो बैटिंग करने के लिए न्यू बैटर जो कि ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं चेयरमैन पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप मिस्टर अली खान तरीन, जो कि फैंस में इस टाइम सेल्फीज और वीडियोस जो है वो बनवाते हुए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त साइन है क्रिकेट के लिए, इन यूथ के लिए, इन यंगस्टर्स के लिए, इन मैदानों के लिए जहां पर बहुत कमी है। और ये एक उम्मीद की नई किरण मिस्टर अली खान तरीन की सूरत में, और ऐसे जो है वो स्टेक होल्डर्स का टेप बॉल में आना बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एंट्री है टेप बॉल की दुनिया में। Absolutely a big news. There's no question about that. And he's a very popular figure in southern Punjab, in Multan. This is his second home. He comes from Lodranwala. Oh, was that a nick? Was that a nick? The keeper is up. Everyone is up except the umpire. The umpire hasn't made the decision as yet, but the fielding team are looking very confident. They think they have their man. स्विंगिंग यॉर्कर, क्या मूवमेंट दिखाई दी है, क्या स्विंग हुई है बॉल, और घूमती हुई बॉल जो कि चकराती हुई बैटर को विकेट कीपर के हाथों में गई है। और काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बॉलर कलीम खान, और बैटर जिनका कहना है कि बॉल जो है वो मेरे फुट से टच की है। अब्दुल्ला शिवारी आए हैं न्यू बैटर, और अब्दुल्ला शिवारी जो है वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कलीम खान, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी इस टाइम काफी काबिले तारीफ है। और यहाँ पर काबिले तारीफ मुजम्मिल कामों की भी हैं। जब आपके बॉलर्स को रन्स लग रहे होते तब आपकी कैप्टनसी का जो है वो सही कड़ा इम्तिहान होता है। और यहाँ पर अपने नर्व्स को बड़े ही भरपूर तरीके से इन्होंने काबू किया है, और बॉलिंग लाइन से बैटर्स को, टीम गुजरांवाला को खूब जो है वो कड़ा चैलेंज दिया है। You know, it's kind of an unusual situation for any captain playing an 8-over match. And he has really shuffled his bowlers quite intelligently. Has Muzammil Kamuki, Ali Threen there on your screen amongst the crowd. And a bit of a selfie moment was going on earlier on. Absolutely loving the moment, loving every bit of it. जी हाँ, बिल्कुल। कलीम खान जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, पहले ओवर में रन्स लगने के बाद क्या वापसी की है कलीम ने। इस बार फुल लेंथ बॉल उठा के खेल दिया है, यकीनी तौर पर गैप तलाश करने में कामयाब हुए, और 4 रन्स का इजाफा होगा अब्दुल्ला शिवारी की जानिब से। Yeah, he really went with the angle, the left-hander Shivari, and got enough bat on it. It went all the way to the boundary for 4. Not was entirely out of the middle of the bat. Have a look at that again in the replay. He just went through with the shot and transferred his body weight to the shot. That's why it went one bounce boundary all the way into the crowd. That really was a good strike by the left-hander. कलीम खान, कलीम जिन्होंने इस ओवर में भरपूर तरीके से वापसी की, लेकिन बैटर अब्दुल्ला शिवारी भी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है पाकिस्तान टेप बॉल के। आते ही जो है इन्होंने चार्ज किया है। एक बार फिर से अब्दुल्ला शिवारी भरपूर तरीके से तैयार है। कलीम खान दराज कद है, और दराज कद जब हाई आर्म से यॉर्कर करता है तो मुश्किल हो जाता है। No, that was a little short and thumped away straight to the man who's patrolling the fence. Sarmad Hamid does the tidying up, and that will close the over number 6. 96 for 3 Gujranwala. जी हाँ, 6 ओवर्स मुकम्मल हैं, 96 रन हैं, और 3 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं। तैमूर मिर्जा, वसीम लेफ्टी और इलियास जानी, जो कि इस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्टर अली खान तरीन, चेयरमैन
पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, जो कि बहुत ही खुशगवार मूड में, और आप ये देख सकते हैं फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये इनसे प्यार करने वाले जो है, इनसे यकीनी तौर पर आज अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान की सरजमीन पर दुनिया टेप बॉल का सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाला इवेंट, जिसकी प्राइज मनी है 15 मिलियन और दीगर इनामात भी शामिल है। और ये देख सकते हैं आप, और ये जनूबी पंजाब के लोग, इनकी मेहमान नवाजी और इनका जो प्यार है वो यकीनी तौर पर एक मिसाली है और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं अंपायर सिग्नल यहाँ पर आ चुका है सर शहबाज का, कि आई थिंक ये वो जो न्यू रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो जो बॉल पर टेप बॉलर अपनी मर्जी से करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो ओवर आ चुका है। जी हाँ, मिस्टर अली खान तरीन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही ज़बरदस्त मूड में जो इनिशिएटिव लिया इन्होंने यंगस्टर्स के लिए, इन यूथ के लिए, और टेप बॉल में इनका आना बहुत बहुत बड़ी जो है वो टेप बॉल के लिए खबर है, इन यंगस्टर्स के लिए न्यूज़ है। Quite right, Mirza. And Takri Janan, the youngster, he was very expensive in his first over. Will need to finish well here, and he can tape the ball as he wants to. This is the new role introduced by the great man Ali Khan Tareen. जी हाँ, ये वो ओवर है जिसने पूरी दुनिया टेप बॉल में जो है वो खलबली मचा दी है और एक बता दिया है कि यहाँ पर बहुत न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा दी मिस्टर अली खान तरीन ने। और ये बॉलर के राइट में है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो बॉल पर टेप करेगा। और न्यू बॉलर तैयार है तकरीर जनान पहले बॉल के लिए। Full toss, didn't get out of the middle of the bat, tried to hit that too hard and went down to deep covers for a couple of, and it's a no ball, would you believe? It's going to be a freebie now. Well, it's all happening here in Multan. जी हाँ, यहाँ पर एक आर्ट है ये भी कि आप अपनी मर्जी से टेप करें और फिर उस टेप के मुताबिक आप जो स्विंग चाहते हैं, जो मूवमेंट चाहते हैं वो भी हासिल करें। सो जो टीम जो है वो इस ओवर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने में कामयाब रहेगी, उसके यकीनी तौर पर जीतने के चांसेस काफी रोशन होंगे। और यहाँ पर पहला बॉल नो बॉल करार दिया गया अंपायर की जानिब से। 7वां ओवर तकरी जनान ने आगाज किया नो बॉल के साथ, जो कि अच्छा नहीं है टीम तौनसा शरीफ अल मुर्तजा सीसी के लिए। जी अंपायर का सिग्नल नो बॉल है और तकरी जनान यंग बॉलर है और गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स जो कि 98 रन्स जो है वो बनाने में अभी तक कामयाब हुई है। 7वां ओवर जिसका आगाज बिल्कुल आइडियल नहीं है टीम तौनसा शरीफ अल मुर्तजा सीसी के लिए। जी हाँ, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया गया था और अंपायर सर शहबाज का सिग्नल के ये नो बॉल है। Yeah, the confirmation comes out. It remains a no ball and it remains a free hit now. Well. Takri Janan, the youngster, under a lot of pressure. He has gone for 31, has bowled only one over so far into his second over. And this is kind of a night he will want to forget, I'm telling you. Because this is not you want with the start of such a huge event, being a youngster. He's very young in this field. Here he comes with the free hit now to Buzdar. Slow one, picked out of the ground. Maximizing the slow ball. The freebie, Shoaib Buzdar is in supreme touch and he's making use of his form to good effect. जी हाँ, फुल टॉस का फायदा उठाया है, यहाँ पर प्रॉपर मिडिल किया, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया है। 6 रन्स के लिए शोएब बुज़दार 2025 के कामयाब तरीन बैटर्स में इनका शुमार। और 2026 में भी जब एंट्री करते हैं तो दुनिया टेप बॉल के बड़े बड़े जो है वो इवेंट्स में अपने आप को मनवाते। इस बार जोरदार हिट लगाई लेकिन कामयाब ना हुए बाउंड्री हासिल करने में। 1 रन आएगा। Yeah, one of those rare deliveries by Takri where he didn't concede a boundary.
This is the section of the crowd. Quite a few people turning out here in DHS Sports Complex, Multan. And they're being entertained brilliantly by this batting lineup of Gujranwala. Earlier on, the team was removed very early in the scene in the very first over. And after that, the onslaught by Elias Jani in particular. And he was supported by Wasim Lefty. They are out now, and it's up to Abdullah and Shoaib Buzdar. Drilled hard by the left hand along the carpet. Good bit of fielding by Sarmad Hamid. Only limits to single. जी यहाँ पर दाद देना पड़ेगी तकरीर जनान को। रन्स लगे, नो बॉल आया, उसके बाद नो बॉल को यूटिलाइज भी किया गया 6 रन्स की सूरत में, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्लान बदला, लाइन और लेंथ बदली और उस पर अभी तक कारगर भी साबित हुए हैं। यंग एज है, अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये प्लेटफॉर्म यकीनी तौर पर इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा एक्सपोजर आपको मिले तो यकीनी तौर पर इससे अच्छा और नहीं हो सकता। पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप चेयरमैन मिस्टर अली खान तरीन, जिसकी पहली शाम, पहला मैच, पहली इनिंग्स जारी है और गुजरावाला, वासिफ स्पोर्ट्स यहाँ पर सुपर बॉल का सिग्नल आ चुका है। Yeah, it's all happening. Very unlucky, the youngster Takri Janan. It's all happening in his over. Free hit, super ball. What can you do as a youngster when you're already under the pump? Now, a serious conversation between the captain of Gujranwala, captain of Thonsa, beg your pardon, Muzammil Kamuki, and the umpire Shehbaz Kalia. Used to be a legend of the game in his playing days, Shehbaz Kalia. He nowadays does the umpiring. And it's going to be a super ball. Super ball means every run scored will be multiplied by 2. So the scores which are made of a free hit of a super ball will be counted 2 times. Super ball! Can you ask for a better super ball from a bowler? Nicely bowled. Well done, son. बनाना स्विंग जो है वो दिखाई दी है। एयर में जब बॉल घूमती है तो बड़े बड़े बैटर घूम जाते हैं और यहाँ पर घुमाया है, बताया है, हिलाया है। तकरी जनान ने अपनी कम एज में जो है यकीनी तौर पर अपने टैलेंट को शोकेस किया है। तकरी जनान सामने बुजदार। Now down the leg side, erring in line, but the ball before was absolutely a tailing delivery. So you don't expect this type of wide delivery after that beauty, after that absolutely ripper. So you have to be consistent as a bowler to be successful at this level. And he's only young, he's only learning. At the moment he's under the pump, I'm understanding, but it's a lot of time for the youngster to get back and just gather himself. Another good delivery, low full toss ended up and nicely played by the batsman towards the cow corner for a single. जी हाँ, यहाँ पर दांत देना बनेगी जब आप एक बॉल पर 8 रन दे दें और उसके बाद आपको मुश्किल हो जाता है वापस आना ओवर में। और यहाँ पर इस कम एज में इस यंगस्टर ने जो है वो किया है, अपने आप को मनवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वापसी की है और कंसिस्टेंटली जो है वो यॉर्कर्स किए हैं। ज़्यादा विट नहीं दे रहे, ज़्यादा जो है वो रूम नहीं दे रहे, ज़्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तकरी जनान पर फिर से तैयार है, सामने है शोएब बुजदार जो है वो दूसरे एंड पर है, सॉरी अब्दुल्ला शिवानी है स्ट्राइक पर रेडी। Now this is an outside edge and it's going to hit the boundary. A lot of work for the fielder. Does well to cut it off. Kalimullah there at third man boundary, but a 2 runs taken. जी हाँ, यहाँ पर कैप्टन काफी खुश होंगे, स्टोन मैन मुजम्मिल कामों की, और 106 रन्स 108 रन्स जो है वो स्कोर बोर्ड पर मौजूद हैं। 7 ओवर्स यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हुए। यहाँ पर माजरत के साथ यहाँ पर डिसीजन लिया गया अंपायर की जानिब से, एक मीटिंग कॉल की है कैप्टन स्टोन मैन मुजम्मिल कामों की ने, देखना अभी ये बाकी है। जी हाँ, 7 ओवर्स मुकम्मल, 110 रन्स, 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। शोएब बुजदार जिन्होंने 8 बॉल्स का सामना किया, 20 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला शिवानी जिन्होंने 6 बॉल्स पर 9 रन्स बनाए हैं और
क्रीज पर मौजूद हैं, बड़े ही भरपूर तरीके से जो है वो शोएब बुज़दार का साथ देते हुए। अब देखना ये है कि आखिरी 6 बॉल्स पर कितने रन्स जो है वो आते हैं। 6 बॉल्स जो है वो बाकी है इस पहली इनिंग्स की पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप। इसका पहला मैच तौंसा शरीफ अल-मुर्तज़ा सीसी और गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स के दरमियान जारी है। 110 रन और शोएब बुज़दार जो कि स्ट्राइक पर मौजूद हैं, मेहमान ग्रामी स्टेज पर बराजमान है इस जबरदस्त चैंपियनशिप से महजूज होते हुए। इस बार वेरिएशन का इस्तेमाल किया और उसको खेल दिया है आउट ऑफ द ग्राउंड 6 रन के लिए। शोएब बुज़दार यकीनी तौर पर ये अपनी टीम के लिए एक हाई नोट पर इनिंग्स को फिनिश करना जानते हैं। Yeah, he's a very dangerous customer with the bat, Shoaib Buzdar. Look at that. It was a little short and he was quickly onto the back foot, pulled him away, and it went all the way out of the park for the maximum. Salman Baner under a huge pressure. सलमान बुनेर इस बार फुल टॉस बॉल और ये क्या कर रहे हैं बॉलर अपने साथ, ये ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पर बॉल करेंगे तो खुमियाजा जो है वो 6 रन के साथ भुगतना पड़ेगा। Well, he's absolutely taking the ball to the cleaners, the batsman Buzdar. He's unstoppable at the moment. And in the last over, he's really providing the entertainment to this colourful crowd here in Multan. That one hit flat, hard, over mid-off, into the boundary for a maxi. 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, बहुत ही दीदा जेब शॉट्स लगाते हुए शोएब बुज़दार, बॉलर अंडर प्रेशर। सलमान बुनेर तीसरे बॉल के लिए तैयार है। आखिरी ओवर है, पहली इनिंग्स है, 10 बॉल्स पर 32 रन बना चुके हैं। इस बार अच्छी लाइन लेंथ पर बॉल की गई जिसको बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, ग्राउंड शॉट की मद में सिर्फ 1 रन ही आएगा। Yeah, tried to stay away from the reach of Buzdar there with the angle, the left-armer Bunair. A rather good delivery and only single taken. Needs to finish well here for his side of Tonsa, the bowler, and he takes some serious advices from the senior pros in Sarmad Hamid and the captain Muzammil Kamaki. 3 बॉल्स का होना बाकी है पहली इनिंग्स की। अब्दुल्ला शिवारी स्टार ऑलराउंडर पाकिस्तान टेप बॉल के, जो कि इस टाइम स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। सलमान बुनेर 3 बॉल्स पर 13 रन जो है वो कंसीड कर चुके हैं, चौथे बॉल के लिए तैयार है। गुजरावाला जो कि एक अच्छे टोटल की जानिब गामजन, और ऑफ स्टंप पर की गई है बॉल जिसको उठा के खेल दिया है, बना के खेल दिया है, 6 रन के लिए खेल दिया है अब्दुल्ला शिवारी। Yeah, that was a gift. That was a milk and honey for the left-hander. Absolutely brilliantly executed that stroke over mid-off in the slot and bang, and that brings the Super Bowl as well. The action doesn't stop. It continues here in Multan. मुज़म्मिल कामो की यकीनी तौर पर नाखुश है इस टाइम बॉलर सलमान बुनेर के, जो कि आज बहुत महंगे साबित हुए। 10 बॉल्स पर सलमान बुनेर जो है वो 30+ रन दे चुके हैं। अभी तक 2 बॉल्स का होना जो है वो अभी बाकी है। ये सुपर बॉल जो है वो कॉल कर ली गई है। यहाँ पर सुपर बॉल से देखना है कि अब्दुल्ला शिवारी किस हद तक जो है वो फायदा लेने में कामयाब हो पाते हैं। बहुत महंगा ओवर, अब दोबारा से तैयार अब्दुल्ला शिवारी। सुपर बॉल पर खेल दिया है सुपर डुपर तरीके से, स्पेशल स्पेक्टेकुलर शॉट इनटू द फैंस। 6 runs coming from Abdullah Shivari. Well, I remember in a county game, Shahid Afridi hit a ball into the roof and it was given 12 runs of 1 ball. And this time here in Multan in Tape Ball Pakistan Championship, it's the left-hander Abdullah Shivari who gets 12 runs of 1 ball. Mind you, it was a super ball in the slot and bang!
बिल्कुल, ये बुनियादों को हिला देने वाली यहाँ पर बैटिंग जारी है आगाज के इलियास जानी ने और शुएब बुज़दार ने भरपूर तरीके से जो है वो रन्स बटोरे और अब्दुल्ला शिवारी भी तैयार है। फिर एक और बड़ा शॉट, हवा में बॉल, ये ले जी, फैंस में है, स्टैंड्स में है ये बॉल। क्या कमाल की क्लीन स्ट्राइकिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है अब्दुल्ला शिवानी की जानिब से। And it's a no ball, adding insult to the injury. Oh my word! The bowler is going nowhere. At the moment, he's merciless. The batsman is merciless and the bowler is absolutely at the receiving end. Would you believe what a finish it's proving to be? If this is going to be a no ball, then I can tell you one thing, Mirza, 150 even is on the cards. जी हाँ बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, ये बॉल अभी बाकी है, ये देखना बाकी है अंपायर का सिग्नल कि ये लीगल बॉल था या फिर ये नो बॉल था। अगर तो ये नो बॉल है तो यकीनी तौर पर इस ओवर ने जो है वो कंप्लीटली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थर्ड अंपायर का फैसला जिसका बेसब्री से, बेकरारी से इंतजार किया जा रहा है दोनों टीम्स की जानिब से। और बहुत बड़ा टोटल सेट कर चुकी है इस टाइम अभी तक गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स की टीम। ये आप देख सकते हैं सलमान बुनेर जिन्होंने बहुत ज्यादा रन्स कंसीड किए हैं और ये बहुत ही करीबी मामला लग रहा है। ये It's very tight. Yeah, we got blinded by the feet of the non-striker Buzdar, but still, in my opinion, we need to check from a different angle if it is possible where the foot landed. You know that the rule says that your front foot needs to land within the popping crease at the point of delivery. So this is what umpire is checking here. जी हाँ बिल्कुल, ये चेक किया जा रहा है कि फ्रंट फुट जो है वो पॉपिंग क्रीज से जो है वो क्रॉस कर गया था या फिर उसकी हदूद, लीगल हदूद में था। और बहुत बड़ा डिसीजन है ये, इस गेम का एक अहम डिसीजन जो कि थर्ड अंपायर के लिए एक कड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि थर्ड अंपायर जो है वो दूसरे एंगल के जो है वो वेट में है कि वो दूसरे एंगल से मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा आया कि ये नो बॉल था या नहीं। अंपायर इजाज सज्जा और अब्दुल्ला शिवारी, शुएब बुज़दार ने आखिर में आकर इनिंग्स को जो है वो बड़े ही भरपूर तरीके से हैंडल किया, लेकिन शुएब बुज़दार के साथ साथ अब्दुल्ला शिवारी ने भी जो है वो कसर कोई छोड़ी नहीं है। Well, the batters of Gujranwala have hunted in pairs. We talk about bowlers hunting in pairs. It's been the batters who have hunted in pairs. You talk about Wasim and the other batter Ilyas Jani, and now it's Shivari and Buzdar, and this is the right angle, and I think he's going to get away with it. He's going to get away with it because some part of your foot has to be within the popping crease, and mind you, the line belongs to the umpire. जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का फैसला जो कि इस एंगल के इंतजार में थे हमारे थर्ड अंपायर, और अंपायर का फैसला आ चुका है कि ये दिल थाम ले, ये नो बॉल है। He is not going to get away with this. Oh, when things don't go your way, they really don't go your way. Oh my word, the bowler Bonaire, I'm sorry for you, young lad. You are under a serious pressure tonight. सलमान बुनेर जिन्होंने अभी तक एक बॉल आप कह सकते हैं कि राइट ऑन द मनी नहीं की गई, थोड़े से नर्वस दिखाई दिए, शायद ज़्यादा ट्रैवल करके आए, बॉडी फटीक लग रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में जो है वो अच्छे तरीके से कम बैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेप बॉल के अच्छे बॉलर्स में इनका शुमार किया जाता है। और यहाँ पर आज का दिन, आज का ये मैच, ओपनिंग मैच इनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित होता हुआ। सलमान बुनेर फ्री हिट के लिए तैयार है, अब्दुल्ला शिवारी नो बॉल्स पर 27 रन्स जैसी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल चुके हैं। सलमान बुनेर, अब्दुल्ला शिवारी तैयार, ये अच्छा बॉल था और इस बार फुल लेंथ डिलीवरी जो कि कारगर साबित हुई। रन आउट चांस, और यकीनी तौर पर रन आउट नहीं होंगे क्योंकि प्लान जो किया था आखिर तक अपनी क्रीज में रहे शुएब बुज़दार और रन्स जो है वो 2 हासिल करने में कामयाब हुए। क्या कहना चाहेंगे एफएस इस बैटिंग के बारे में? तैमूर मिर्जा अर्ली आउट हुए, उसके बाद इलियास जानी ने जिस तरह से इनिंग्स को संभाला, शुएब बुज़दार और अब्दुल्ला शिवारी, इन तीनों की बैटिंग को आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? Yeah, don't take even Wasim Lefty out of the equation because he too supported Ilyas Jani brilliantly. After the departure of TM, they really, knitted the partnerships which were required. 142 runs
they've made so far, and it will be 143 because 144, beg your pardon, because 2 runs were taken of the final ball, and there was an opportunity of a run out for the fielding side. They couldn't take the opportunity because they were under huge pressure. They were under the pump and couldn't recover from the onslaught by the batting side. They really have batted brilliantly. The left-hand, right-hand combination was absolutely prolific for the boys of Gujranwala. And now in a team huddle, the run chase will start. And I just get the feeling that I need to take a little bit of break now. And joining you, it's going to be Qamar alongside Ayub. थैंक यू एफएस। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा है इस इनिंग में दोनों साइडों की जानिब से। तैमूर मिर्ज़ा जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद इलियास जानी ने बड़ा बेहतरीन बल्लेबाजी की है। ग्राउंड के चारों जानिब छक्के लगाए हैं। ये देखें बिल्कुल, अरे ये एक और खूबसूरत शॉट इलियास जानी की जानिब से। जी हाँ, छक्कों और चौकों के साथ एक और खूबसूरत बिल्कुल। यहाँ पे तैमूर मिर्ज़ा की जानिब से मीटिंग के बाद आज बिल्कुल अर्ली आउट हो गए थे तैमूर मिर्ज़ा। और जो शायकीन क्रिकेट, जो इनके फैंस इनकी बल्लेबाजी देखने आए थे, वो देखने को नहीं मिल सकी थी। बॉलिंग की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप है टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की। 150 रन का टारगेट है जी। ड्रोन व्यू टेबल चैंपियनशिप। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है कमर अब्बास जंजुआ ने। बहुत शुक्रिया अयूब भाई। और अच्छा स्टार्ट ना होने के बावजूद एक अच्छे टोटल को जो है वो बोर्ड पे सेट किया है वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम ने। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में शायकीन क्रिकेट की अच्छी खासी तादाद इस वक्त DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। फैमिलीज ने रुख किया है इस खूबसूरत ग्राउंड का। ये मुल्क पाकिस्तान के चंद बेहतरीन ग्राउंड में से एक है DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जहां पर पाकिस्तान टेबल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। पहले मुकाबले में 150 रन का अयूब टारगेट सेट किया है वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम ने। अयूब क्योंकि 150 रन का टारगेट जो है वो पूरा करना है अल-मुर्तज़ा क्रिकेट क्लब तौंसा की टीम को, और मुजम्मल कामों की और सरमद हमीद पर कड़ी नज़र होगी। जो उनके टीम के प्लेयर्स हैं, उनके टीम के जो ओनर्स हैं, इनकी टीम के जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि सरमद हमीद चेस मास्टर के नाम से मशहूर हैं, स्टोन मैन को चेस करना पसंद है, हिटमैन के नाम से मशहूर हैं। ये खेमा है अल-मुर्तज़ा क्रिकेट क्लब तौंसा का,
8 ओवर में 150 रन का टारगेट जो है वो चेज करना होगा अगर इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में फतह अपने नाम करनी है। अभी तक मुतमन नज़र आ रहे हैं अल मुर्तज़ा क्रिकेट क्लब तोंसा के जो प्लेयर्स हैं उनके खेमे में, और दूसरी तरफ वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला जिनकी क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के मशहूर और मरूफ तैमूर मिर्ज़ा, जो इस वक्त ज़िंदगी के बेहतरीन फॉर्म में है। और मेरा ख्याल है कि टेबल क्रिकेट में हर एक यंगस्टर वो यही चाहेगा कि जो फेम मिला है तैमूर मिर्ज़ा को उसी फेम को हासिल किया जाए। जी हाँ, मुजम्मल ने यही सोचा है कि अपने आप को बैक किया जाए और ये निकली वहां पर ये सलामी जोड़ी सरमद हमीद जेलम और नवीद दारा जिनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से है, और ये मोस्टली ने मिड में आकर बैटिंग करते हुए देखा गया है, लेकिन आज कप्तान ने जो है वो इत्मीनान दिया है नवीद दारा को। उनके साथ सरमद हमीद फ्रॉम जेलम हिटमैन के नाम से मशहूर हैं, 150 रन बनाने हैं। और बॉलिंग में अगर बात की जाए तो जब ड्राफ्टिंग हुई थी तो सबसे पहली पिक अरशाद अफरीदी की तैमूर मिर्ज़ा ने ली थी। अरशाद अफरीदी भी इस वक्त अपने दौर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा जो है ये मुकाबला अयूब होने जा रहा है, क्योंकि अरशाद अफरीदी, राना मोहसन, उनके साथ और भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। सदाम शाह लैया लेजेंड है और ऊपर से लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा मुकाबला होने वाला है। सरमद हमीद और नवीद दारा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डीएचए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहां पर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप जिसकी आज पहली शाम, और पहली शाम में 150 रन का टारगेट सेट किया। मकर्रा 8 ओवर्स में वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम ने सरमद हमीद पर बड़ी निगाहें हैं इनके फैंस की, इनकी टीम के जो ओनर्स हैं, इनका जो कोचिंग स्टाफ है, उन तमाम की बड़ी कड़ी नजरें हैं सरमद पे, क्योंकि अगर वो अयूब 4 ओवर खेल जाते हैं तो यकीनन मुकाबले का फैसला वहां पर कर जाएंगे वो। जी हाँ कमर, बड़ा मुकाबला और 150 रन के ताकुब में सरमद हमीद आ चुके हैं और तैमूर मिर्जा ने आज आपको बताते चलें अपना इक्का आजमाने का सोचा है, क्योंकि सद्दाम शाह लैया एक वक्त में वो बॉलर था कि ड्रॉप टाइम में सबसे पहली पिक सद्दाम शाह लैया की होती थी कि कोई और ना ले जाए, और काफी अरसे के बाद वापसी हुई है और यहाँ पे तैमूर मिर्जा ने पहली ओवर में उसको आजमाने का सोचा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और सदाम शाह लैया पहला गेंद, ये लो फुल टॉस गेंद था, और ये भी चीज एक यूनिक चीज है टेबल क्रिकेट में, पहली गेंद पर रन नहीं लिया गया क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है। वो चाहते हैं जितना भी टाइम जो है विकेट पे सरवाइव किया जाए, ये हमारे लिए बेहतरी हो सकती है क्योंकि पहला मुकाबला है, शायद ये भी वजह हो सकती है। और पहले 2 ओवर दायरे के हैं, ये रन ना लेने की वजह वो भी है क्योंकि फील्डर के बिल्कुल बॉल हाथ में था। दूसरा बॉल फुल टॉस बॉल, चांस फॉर कैच, लेकिन यहाँ पे थोड़े से दूर थे फील्डर और 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, पहली 2 गेंदें दोनों लो फुल टॉस गेंद थी
और अभी तक अच्छा आगाज वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम का। जानते हैं सरमद हमीद अगर 5-6 बॉल जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, अगर वो टाइम ले लेते हैं तो फिर बड़े शॉट्स खेलने की महारत रखते हैं। ये तैमूर मिर्जा इससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे। सदाम शालिया लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और बड़ा अच्छा इनका स्लिंगी एक्शन है। एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार अंपायर एजाज अहमद जज्जा ने बिल्कुल इस गेंद को डेड करार दिया। अयूब भाई, क्या लग रहा है इस मुकाबले को अगर देखा जाए, क्योंकि कप्तान ने यह फैसला किया है कि मैं मिड में आकर अपनी टीम को लीड करूंगा। स्टोन मैन साइलेंट किलर है मुजम्मल कामों की। जी कमर, बिल्कुल की बैटर्स का पूरे ओवर खेलना लाजमी है। इस टारगेट को चेस करने के लिए और शुरुआत कर दिया यहाँ पे सरमद हमीद। वेलकम टू मुल्तान। सद्दाम शालिया को यहाँ पे आड़े हाथों लिया है। पहला छक्का सरमद हमीद के बल्ले से। पहले 2 बॉल हालांकि फुल टॉस से, लेकिन उसके बाद एक कमाल का छक्का। जी हाँ, ये भी लो फुल टॉस थी और इतनी ऊंचाई में ये गेंद नहीं गया, लेकिन फिर भी जिस मकसद के लिए खेला गया था वो मकसद पूरा हुआ है। सरमद हमीद का जो बड़े शॉट्स खेलने से बिल्कुल नहीं रुकते, बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। सदाम शालिया इस बार भी हवा में गेंद और इस बार भी गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी। एक और छक्का सरमद हमीद के बल्ले से। 1 more ऐड टू द टोटल। जी हाँ, फुल टॉस बॉल था और स्टाइलिश यहाँ पे शॉट देखने को मिला सरमद हमीद के बल्ले से। और सरमद हमीद का विकेट पर रहना तैमूर मिर्जा एंड कंपनी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खूबसूरत शॉट। 14 रन आ चुके हैं। पहले ओवर का बिल्कुल खेल जारी है। 150 तक जाना है। एक बार फिर से सदाम शालिया। इस बार बैकअप लेंथ गेंद थी, रोल किया अपने फिंगर्स को। ये पहला गेंद है जो विकेट पे लगा है। इससे पहले जो 3 गेंद किए हैं वो सीधा बल्ले पे जाके लगे हैं। अच्छा कमबैक। पहली 5 गेंदों पर मैच 14 रन दिए हैं। तैमूर मिर्जा जो है वो बार बार समझा रहे हैं। कमर, यहाँ पे सद्दाम को लाने का मकसद जो तैमूर मिर्जा का है वो है सरमद हमीद की विकेट। 2 छक्के 3 छक्के 4 छक्के खाकर भी अगर सरमद हमीद को आउट कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत फैसला नहीं होगा। जी हाँ, एक बार फिर से ब्यूटीफुल डिलीवरी। इस बार आनो चांस था, लेकिन गिरे वहां पर फील्डर और यूं एक और स्कोर जो है वो टोटल में ऐड होगा। आफ्टर 1-15 for no loss, टीम अल मुर्तजा क्रिकेट क्लब तौंसा। ये दोनों टीम्स के ओनर्स की अगर बात की जाए, अल मुर्तजा सीसी तौंसा शरीफ, असगर जाफरी तौंसा से ताल्लुक है और ट्रू क्रिकेट लवर हैं पूरे जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी टीम अल मुर्तजा सीसी को खिलाते हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की, वासिफ जो स्पोर्ट्स है वो बेसिकली वासिफ भाई का ताल्लुक कराची से है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में टीम को खिलाते हैं। तैमूर मिर्जा उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं और हमेशा वही कैप्टन और आइकन रहे हैं उनकी टीम के। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे इस टूर्नामेंट के रूबे रवा मोहतरम जनाब अली तरीन खान साहब, उनके साथ नदीम खान साहब जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी मरहून मिन्नत जो है ये आप मुकाबले देख रहे हैं इस वक्त DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। सदाम शालिया जिन्होंने पहला ओवर 15 रन पे किया और नवीद दारा, सरमद हमीद जेलम जो है वो दोनों इस्लामी बल्लेबाज हैं जिस वक्त बैटिंग पे मौजूद हैं। किस बॉलर को दूसरा ओवर जो है वो थमाया जाएगा ये देखना बाकी है। अल मुर्तजा क्रिकेट क्लब तौंसा शरीफ, उनके मध्य मुकाबल वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला। सदाम शालिया के बाद लेफ्ट आर्म बॉलर आए हैं। इस बार खिंची हुई लेंथ थी, हाफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, डॉट करने में कामयाब हुई। ये खासियत है जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, गुड लेंथ पर
हिट करते हैं और रोल्स करते हैं अपने फिंगर्स को। इस वक्त हमारे वीवीआईपी स्टेज पर जो है वो मेहमान मौजूद है। शवेज लेफ्टी को बुलाया गया है दूसरे ओवर के लिए। पहला गेंद बड़ा जबरदस्त गेंद रहा शवेज लेफ्टी का। 15 बन चुके हैं, 150 रन तक जाना है। शवेज लेफ्टी एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। Oh my God! Another one into the crowd. One more add to the total. Wow! This is silent killer, Hitman. 3 massive sixers. Have a look at that. Wow! Bang bang. ये तीसरा छक्का सरमद हमीद के बल्ले से। शवेज लेफ्टी पर भी पिल पड़े। एक बार फिर से शवेज लेफ्टी और इस बार हवा में गेंद अप इन द स्काई। विल शुड बी टेकन। God, yes it is. What a grab. Keyman back to the pavilion. Sarmad Hamid from Jhelum walking back to the pavilion. It is massive wicket. Big blow by team Tonsa Sharif. Wasif Sports Gujranwala back in match. जी हाँ, काफी मायूस नजर आ रहे हैं सरमद, और ये विकेट लेकर आपने तकरीबन जो बैटिंग लाइनअप है उसकी कमर तोड़ के रख दी है। अलमुर्जा सीसी तौसा की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और यहाँ पे ये बिल्कुल दिल लगी भी जारी है इलियास जानी एंड मुजम्मिल कामोगी के दरमियान। जिम्मेदारी आई है कप्तान के ऊपर और निभाना हो गया। आज बड़ा टारगेट है, बड़ी मंजिल है, और 8 ओवर्स का मैच कमर मुतारिफ करवाया गया है काफी अरसे के बाद। इससे पहले हम अपने बचपन में देखते होते थे कि 10-10 ओवर्स 12-12 ओवर्स के मैचेस होते थे। उसके बाद क्रिकेट मुख्तसर हुई और काफी अरसे के बाद यहाँ पे अली तरीन साहब ने इस बड़े टूर्नामेंट में 8 ओवर्स के मैचेस मुतारिफ करवाए हैं, और यहाँ पे ये काफी मायूस नजर आ रहे हैं यहाँ पे सरमद हमीद। बिल्कुल वो जानते हैं मेरा विकेट पे रहना कितना जरूरी था, और अब तमाम जो जिम्मेदारी है वो स्टोनमैन पर आ पहुंची है। इस बार पुल किया है, इस बार भी गेंद हवा में, फील्डर मौजूद पीछे। ओह माय गॉड, पुट डाउन। व्हाट्स गोइंग ऑन? वासिफ स्पोर्ट्स फ्रॉम गुजरांवाला। यकीनन अगर ये कैच होता तो मुकाबले में ठीक ठाक वापसी कर जानी थी टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम ने, लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप हुआ है मुजम्मिल कामोगी का। इस बार हम रिप्ले में चेक करेंगे। ये काफी ऊपर लगा गेंद बल्ले के, और काफी देर गेंद हवा में भी रहा। अच्छा खासा टाइम मौजूद था फील्डर के पास, लेकिन बदकिस्मती से इस कैच को नहीं पकड़ पाए, और यूं पहला जीवन दान जो है वो मिला है स्टोनमैन मुजम्मिल कामोगी को। जमान यूसुफ भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, शहर सियालकोट से इनका ताल्लुक है और बड़े कम अरसे में बड़ा नाम कमाया है टेबल क्रिकेट में। अयूब जी हाँ, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी रावलपिंडी में। नवीद दारा फ्रॉम फैसलाबाद स्ट्राइक पर मौजूद हैं। शावेज वंस अगेन अपने ओवर का तीसरा बॉल करवाएंगे। पीछे बड़ा बॉल था, बिल्कुल बल्ले और बॉल की मुलाकात नहीं हुई। अच्छी बॉलिंग शावेज की जानिब से। पहला गेंद भी इसी तरह का, अयूब रोल किया था फिंगर्स को और एक अच्छे एरिया को टारगेट किया था, विकेट के एक अच्छे एरिया को हिट किया था, तो शायद इस वजह से बल्ला जो है वो पहले आया। सरमद हमीद इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफी मायूस नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं मेरा कितना बड़ा विकेट था, 3 छक्के आ गए थे सरमद के बल्ले से, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर उनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। शवेज एक बार फिर से, इस बार किनारा किनारा किनारा, लेकिन ये किनारा दूसरे किनारे के पार चलेगा 4 रन के लिए। 4 रन का इशारा यहां पर सरशेबाज कालिया
और यूं एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए अल मुर्तजा क्रिकेट क्लब तौंसा के बैटर्स। इससे पहले 3 छक्के आए और अब एक चौका आया। सो एंड ऑफ द सेकंड, 26 for 1 by टीम TNS। जी हाँ, अच्छी शुरुआत की थी यहाँ पे शावेज ने। ये काफी बाहर था पाऊं और ये नो बॉल होगा। रेफर जरूर किया था लेकिन अंपायर का जो फैसला है वो चेंज नहीं हुआ। 22 रन हो चुके हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है, 150 तक जाना है। तैमूर मिर्जा। अयूब, टेबल क्रिकेट में हर चीज बदल चुकी है, अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, उसके अलावा बड़े इवेंट्स होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन फील्डर्स का फील्डिंग मिस करना और बॉलर्स का पॉपिंग क्रीज को क्रॉस करना ये नहीं बदला अभी तक। इसकी क्या खास वजह है? जी हाँ, आप पैसे जितने मर्जी इन्वॉल्व कर लें लेकिन ये नो बॉल भी क्रिकेट का हुस्न है, इससे बल्लेबाज को फायदा होता है। बॉलर ज्यादा तेज बॉल करने के चक्कर में, ज्यादा जोर लगाने के चक्कर में नो बॉल कर जाता है और इस बार नो बॉल था, वरना एक और बड़ा नुकसान हो सकता था। 27 आफ्टर 2 ओवर। जी हाँ, ये अच्छा आगाज है। ये बारी किनारा लगा विकेटों के पीछे, विकेट कीपर ने आसान कैच लिया लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी जिससे फायदा बॉलिंग टीम को नहीं हुआ और नुकसान बैटिंग टीम का हुआ है, क्योंकि फ्री हिट गेंद पर आप आउट नहीं हो सकते। 2 के बाद 27। यहां पर अल मुर्तजा क्रिकेट क्लब तौंसा, मुजम्मल कामों की, नवीद दारा इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं और बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में बड़े बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तेज किया आखिरी 12 गेंदे अयूब, रन्स भी बने हैं, डॉट्स भी हुई हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे थोड़ा सा पीछे भी जो तौंसा की टीम है। गालबन अभी भी 16 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो दरकार है, लेकिन ये टेबल क्रिकेट में इतनी रिक्वायर्ड मानी नहीं जाती। 20 से ऊपर अगर आप ये रिक्वायर्ड रन रेट जाएगी तो फिर शायद थोड़ा मसला हो सके। जी हाँ, शायकीन की बड़ी तादाद इस टाइम इस मैच को एंजॉय करते हुए। पहला मैच है और मुजम्मिल का मुकीम डटे हुए हैं, 22 रन बना चुके हैं। इस बार अच्छा बॉल अंदर की जाने आया, बिल्कुल समझने में नाकाम। तैमूर मिर्जा ने अच्छी फील्डिंग की है, डायरेक्ट थ्रो करना चाह रहे थे लेकिन बहरहाल सेव रहे। जी हाँ, अच्छी खासी शायकीन क्रिकेट की तादाद, फैमिलीज ने रुख किया है। ये बड़ा बरकत महीना है माह रमजान का, और माह रमजान हो और मुल्क पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट ना हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सो क्रेडिट गोज टू मिस्टर अली तरीन खान साहब, उनके साथ जितनी भी आर्मी है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जहां से आप ये बराह रास्त मुकाबले देख रहे हैं। शवेज लेफ्टी जो है वो बॉलिंग पे मौजूद हैं, सामने नवीद दारा। मैं एक बार फिर से, इस बार किनारा किनारा किनारा, लेकिन इस बार इंतहाई खूबसूरत कैच विकेटों के पीछे। यकीनन उस्ताद शागिर्द को दाद देंगे, लेकिन नवीद दारा जो है वो दौड़े हैं अपनी क्रीज की जानब। गालबन वहां पर जो है वो क्लोज कॉल है, गालबन वहां पर रिव्यू लिया गया है मुजम्मल कामोगी की जानब से। जी हाँ, सर शहबाज कालिया जो है वो यकीनन थर्ड अंपायर को जो है वो थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे चेक किया जाए। फ्रंट फुट यहाँ पे चेक करेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई थिंक नो बॉल। क्या कहेंगे यूब?
जी हाँ, हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे अंपायर सिग्नल का। और तैमूर मिर्ज़ा की जो मेहनत है वो रायगां गई है। ज़बरदस्त कैच लिया था तैमूर मिर्ज़ा ने, और वो मेहनत बिल्कुल रायगां। नो बॉल है जी। जी हाँ, कैच बड़ा शानदार था। विकेटों के पीछे पीछे दौड़ना था, और जब गिरे तो तब मेसी की भी याद को ताज़ा किया, जब वो गोल करने के बाद अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। तो क्रिकेट में फुटबॉल भी इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत थी गिरने की, सेलिब्रेशन में नहीं गिरे थे, क्योंकि लास्ट मूवमेंट में अपनी बॉडी का जो कंट्रोल है वो ज़रूरी था। बहरहाल जो भी है, मेहनत जो है वो तैमूर मिर्ज़ा की रायगा गई है, और चांस मिला है एक बार फिर से। अयूब, जिस तरह से चांसेस मिल रहे हैं मुजम्मल को, नवीद को, ये चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं मैच ना जितवा जाएं। फ्रीड गेंद, नवीद दारा इस बार सीधा खेले, और क्या खूब खेले हैं ये अलीफ की जानब। सीधा सीधा स्टैंड्स पे गेंद आ गिरा। ये पहला छक्का नवीद दारा के बल्ले से, और इस तरह के कई छक्के दरकार हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। फ्रीड का भरपूर फायदा उठाया नवीद दारा ने। जी हाँ कमर, ये क्रिकेट है। अपनी तरफ से विकेट ले लिया था, सेलिब्रेशन जारी थी, लेकिन नो बॉल हो गया। उसके बाद नवीद दारा ने कहा नई लाइफ मिली है, नई जिंदगी मिली है, और उसको किसी काम लाया जाए। शवेज इस बार हवा में गेंद है, इस बार भी चांस है या नहीं? तैमूर मिर्जा वेरी सेफ हैंड्स, लेकिन इस बार गुस्से का इजहार किया है। जी हाँ, बॉलर पर जो है वो लफ्जों की जंग जारी हो सारी है, लेकिन शवेज लेफ्टी जो है वो अपना काम कर चुके हैं। ये हासा है लेफ्ट आर्म बॉलर्स का अयूब, क्योंकि उनका गेंद जो है वो एंगल के साथ बाहर निकलता है। तो ये भी गेंद अगर देखा जाए तो अवे फ्रॉम द बॉडी, और उसे क्रॉस द लाइन मारने गए नवीद दारा। हालांकि ये गेंद अगर लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के एरिया में आता तो शायद रन्स मिल सकते थे। बहरहाल यहाँ पर विकेट मिला है वास्की स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम को नवीद दारा की सूरत में। जी 7 बॉल्स का सामना किया है, 12 रन्स बनाए हैं नवीद दारा ने। और अब हमीद हमजा पठान को लाया गया है, अटक से ताल्लुक है, अच्छे बल्लेबाज हैं। 59 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। चौथे ओवर का बिल्कुल खेल जारी है। अयूब, यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट पे भी नजर रखना पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले ऑलमोस्ट 16-17 रन रिक्वायर्ड थे हर ओवर में, लेकिन इस बार 21 से ऊपर जो है रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा है। तो ये परेशानी हो सकती है जब आपने बड़े मुकाबले में जो है वो 150 रन चेज करने हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आखिरी ओवर है, जो बुर्ज खलीफा है वो अब्दुल्ला शनवारी की महीने मिन्नत था वो। इस बार लुक एट दैट, न्यू बॉल प्लीज, अनदर वन मोर एड टू द टोटल। हमजा पठान ऑफ द मार्क विद अ जायगेंटिक 6। जी हाँ, 65 रन हो चुके हैं दोस्तों 4 ओवर के इख्ताम पर, और 85 रन मजीद चाहिए अगले 4 ओवर्स में। काफी मुश्किल सूरत हाल है टीम अलमुर्जा सीसी तौसा के लिए। जी हाँ, 65 आफ्टर 4। इस वक्त मुजम्मल कामों की जो उम्मीद की किरण है टीम TNS, मुजम्मल कामों की तैमूर मिर्जा, दोनों का एक ही जिला से ताल्लुक है, और दोनों एक दूसरे की खामियां खूबियां बखूबी से जानते होंगे। TM द नेम ऑफ ब्रांड इस वक्त विकेटों के पीछे हैं। एक अलग मकाम रखते हैं अयूब टेबल क्रिकेट में तैमूर मिर्जा, और जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है, जो मुकाम इनको मिला है, वो टेबल क्रिकेट खेलने वाले हर प्लेयर की यही ख्वाहिश है। सदाम शाह लैया,
Asbar, hello and goodbye, good night. Thank you very much. Where is the ball? New ball, please. Stoneman, silent killer. Unstoppable batting at DHA Multan Sports Complex. Wow. Have a look at that. Bang. वाह, इस बार सीधा खेले हैं, फील्डर मौजूद पीछे और यकीनन एक ही बात आसानी बनाने में कामयाब। मुजम्मल की अगर बात की जाए, अयूब क्या कहेंगे, क्योंकि अभी भी मैच 4 ओवर का खेल बाकी है, तो रन्स चेस कर सकते हैं। हमजा पठान जिन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। शायकीन क्रिकेट की अच्छी खासी तादाद इस वक्त डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सदाम शालैया, सामने हमजा पठान। पठान इज बैक, another one out of the park into the night sky. हमजा पठान, अनबिलीवेबल बैटिंग। अभी तक 2 गेंदें खेली हैं और 2 फलक शगाफ छक्के लगाए हैं और उनकी आमद हुई इन 2 छक्कों के साथ। सदाम शालैया इस बार सीधा सीधा सीधा। Oh my God! 1, 2 and 3 consecutive sixes by हमजा पठान। उधर पठान की आमद हुई है और यहां पर शुएब मिर्जा की आमद हुई है। क्या कहना चाहेंगे शुएब? थैंक यू सो मच कमर, क्या बैटिंग कर रहे हैं। पठान ने बताया है कि पावर ऑफ पठान किसे कहा जाता है और अपनी टीम की जो डूबती हुई नैया है उसको सहारा दिया है और अपनी कलाइयों का भरपूर यहां पर जोर दिखाया है हमजा पठान ने। सदाम शालैया इस बार फ्लिक। Oh my God! Another one into the crowd. एक बार फिर से बाजू फिजा में बुलंद हुए एजाज अहमद जज्जा के बताया कि पठान आया है। 4 गेंदें खेली हैं, 4 छक्के लगाए हैं। शुएब की आमद पठान के लिए बड़ी शानदार रही है। जी हाँ, बॉलर जाएं तो फिर कहां जाएं, क्योंकि ये परफेक्ट डिलीवरी थी। ब्लॉक होल में डिलीवर किया और जड़ से उठाकर खेल दिया है 6 रन के लिए। वंस अगेन सदाम शालैया। Oh my God! Oh my God! Another one! Where is the ball? New ball, please. Pathan is back. Hamza Pathan, your beauty. जी हाँ, छक्के छुड़वा दिए हैं, पसीने यहां पर छुड़वा दिए हैं पठान ने और 4 बॉल्स के बाद 5वीं बॉल्स पर भी आप ये देख सकते हैं अपनी बॉडी को एडजस्ट किया और स्क्वायर लेग एरिया में खेल दिया है 6 रन के लिए। बहुत ही 6 सिक्सर जो हैं, सॉरी शुएब, इस वक्त लग चुके हैं। अभी ये पहला मुकाबला है, 96 बन चुके हैं। 7 गेंदों पर 37 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है। 10 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं मुजम्मल ने। 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा के 30 रन पर नवाद हैं हमजा पठान। कंवर, ये पठान ने बताया है कि दलेराना बैटिंग कैसे की जाती है, उसका प्रैक्टिकली जो है वो मुंह बोलता सबूत इनकी बैटिंग में नजर आया है। और बॉलर को जब आप परफेक्ट डिलीवरी पर, जब उनकी स्ट्रेंथ है यॉर्कर, उस पर आप अटैक करेंगे तो फिर बॉलर जो है वो बौखलाहट का शिकार हो जाता है। फिर उसके लिए जो है वो रूम नहीं होता, उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं होता और पठान ने तमाम तर रास्ते जो है वो इस ओवर में बंद किए थे। उसकी एक वजह आप भी हो सकते हैं शुएब, यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें, इस ग्राफ को देखें तो एक लम्हा ऐसा था जहां पर लग रहा था कि टीम मुर्तजा सीसी तौंसा शरीफ जो है वो डाउन ऑफ द टारगेट है, लेकिन ये ओवर ने जो है वो तमाम तर उम्मीदों को बहाल कर दिया है तौंसा के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जब आपकी आमद हुई तो 21.5 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन जब आप आके बैठे हैं तो 18 के आसपास आप पहुंचा है रिक्वायर्ड रन रेट है। और तौंसा की टीम चाहेगी कि आप हमारे हर मैच में ऐसा कमेंटेटर आए।
बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो हमजा को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर। और देखें ना, ये खराब बॉल है और यहाँ पर लग ऐसा रहा कि अंपायर का सिग्नल जो है वो बैटर की फेवर में आएगा। जी हाँ, ये नो बॉल है और पलकते झपकते जो है वो अंपायर का सिग्नल नो बॉल की सूरत में। नो बॉल से आगाज किया है अब्दुल्ला शेवारी ने और साथ एक रन प्लेट का मिला है। सो इट्स मीन के 2 रन आ चुके हैं, अभी तक एक भी लीगल बॉल नहीं हुई है। सो तैयार है बॉलर, फ्री हिट था और फ्री हिट पर यकीनी तौर पर लीगल बॉल ना करा बाय अंपायर सिग्नल, इट्स अ वाइड बॉल। 3 रन दे चुके कमर और अभी तक एक भी लीगल बॉल नहीं हुआ और फ्री हिट बेकरार है। तैयार है ये मुजम्मिल कामोकी के लिए। इस बार हमजा आ चुके हैं स्ट्राइक पर। जी हाँ, हमजा की आमद हुई है एक बार फिर से, लेकिन इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रही और दूसरी तरफ दूसरे किनारे से भी बाहर गई ये गेंद। बगैर किसी गेंद के 5 रन आएंगे और ये बहुत ही महंगा तोहफा जिसको बड़ी खूबसूरत तरीके से पैक किया, रैप किया और डिलीवर कर दिया है टीम तौनसा शरीफ के लिए। और ये यकीनी तौर पर तैमूर मिर्जा एंड कंपनी ना खुश है इस टाइम। बहुत ही नाराज कुन बॉलिंग करते हुए यहां पर अब्दुल्ला शिवारी 8 रन दे चुके हैं, अभी तक एक भी लीगल बॉल नहीं हुई। जी हाँ बिल्कुल, हमजा पठान एक बार फिर से, इस बार बल्ला चला, फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस थी और ये लगी चली बाउंड्री के उस पार। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया हमजा पठान ने और एक गेंद पर 12 रन आ चुके हैं हमजा पठान, जिनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, हमजा पठान जिन्होंने आकर पूरी टीम का मोमेंटम जो है वो चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया अपनी मास्टर ब्लास्टर बैटिंग की बदौलत। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं हमजा पठान, जिन्होंने 6 बॉल्स का सामना किया है, 34 रन जो है वो बना चुके हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करना चाहा अंपायर से अपील करते हुए हमजा कि ये वाइड बॉल है, लेकिन तैमूर मिर्जा इज नॉट हैप्पी, जिन्होंने रिव्यू लिया है अंपायर के इस सिग्नल पर और वाइड बॉल का सिग्नल आया अंपायर की जानिब से। जी हाँ, 13 रन्स आ चुके हैं, अभी तक एक लीगल बॉल हुई है। अब्दुल्ला शिवारी केपीके के ऑलराउंडर्स, बड़े ऑलराउंडर्स में इनका शुमार है, जिन्होंने बैटिंग में भरपूर अपने आप को मनवाया, आज अच्छे साबित हुए, लेकिन जो है वो आज बॉलिंग में बहुत ही नाला आगाज कर दिया यहां पर अब्दुल्ला शिवारी ने। 13 रन आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तैमूर मिर्जा काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और अंपायर के इस फैसले को चैलेंज भी कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, आखिरी 12 गेंदें अगर देखें तो रन्स की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है, 46 रन आए हैं आखिरी 12 गेंदों पर। यहाँ पर गालबन वाइड बॉल जो है वो चेक किया जा रहा है, बड़ी क्लोज कॉल है और टेस्ट होगा थर्ड अंपायर का। जी हाँ, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से कि ये थर्ड अंपायर के लिए एक डिफिकल्ट होगा डिसीजन। और जी हाँ, ये यहाँ पर सर शहबाज ने जो है वो यहाँ पर अपॉलॉजी की है और अपने फैसले को रिवर्स किया है और ये लीगल बॉल कॉल की गई है। हमजा पठान, अब्दुल्ला शिवारी, फुल लेंथ बॉल जिसको मिनी हेलीकॉप्टर कहेंगे, ये शॉट खेला है और हल्का सा जंप भी दिया है। ये कॉन्फिडेंस आसमानों को छूता हुआ अब्दुल्ला शिवारी के अगेंस्ट हमजा पठान का। जी हाँ, इस वक्त हैंडसम बॉय आप स्क्रीन पे देख रहे थे, ये फ्लिक ऑफ द रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को ग्राउंड के खाली एरिया में भेजने में कामयाब हुए हमजा पठान। महज 8 गेंदों पर 38 रन बना रखे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड नाइट। हमजा पठान बैक टू द पवेलियन आफ्टर वंडरफुल नॉक। जी हाँ, ये गुड नाइट जो आपने कहा है, ये बड़ा ही आपका जबरदस्त अंदाज में आप बोलते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कमर कि ये गुड नाइट जो है ये वाकई में हमजा के लिए गुड साबित होगी, क्योंकि अपनी टीम को जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पर लाकर अब पवेलियन जाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा मुजम्मिल के पास, क्योंकि मुजम्मिल एक सीनियर खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं यहाँ से फिनिश करना, क्योंकि मुजम्मिल को 2 चांसेस ऑलरेडी टीम दे चुकी है। जी हाँ बिल्कुल,
हमजा पठान के बाद एक और खतरनाक तरीन बैटर जिनकी एंट्री हुई है, मिस्टर ZY जमान यूसुफ, जिनका ताल्लुक शहर से आलकोट से है और पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में ये पहले यंग ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्टाइलिश शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। जमान यूसुफ, शहर इकबाल से इनका ताल्लुक है और इस इवेंट में बड़े ऐसे स्टार्स जिनके मुस्तकबिल का फैसला होगा जो टूर्नामेंट में परफॉर्म करेंगे। कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ही जो है वो एक विकेट गिरा था। टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की टीम 5वें ओवर में नुकसान उठाना पड़ा था। जमान यूसुफ इस बार हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद पीछे। ओह माय गॉड, आसान कैच फैसल। जी हाँ बिल्कुल, ये आगाज अच्छा नहीं था। एक बॉल पर 13 रन दे चुके थे, लेकिन उसको बड़े ही भरपूर तरीके से बाउंस बैक करते हुए, वापसी कराते हुए अपनी टीम तौंसा शरीफ के अगेंस्ट गुजरांवाला की जानिब से अब्दुल्ला शिवारी, जिन्होंने 2 विकेट्स जो है वो हासिल कर ली हैं इस ओवर में, और जमान यूसुफ जो कि बिना कोई रन बनाए पवेलियन जा चुके हैं। जी हाँ, ये खासा गेंद हवा में रहा और लो आर्म पे इस कैच को पकड़ा गया। जमान यूसुफ के इनिंग का खात्मा हुआ। तो अब शुएब थोड़ा सा मामला जो है वो दूसरी तरफ चला गया है। बाली आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज और कमर मुझे जो है वो कुछ और ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मैच मुझे बहुत क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक लम्हा ऐसा था जहां पर टीम गुजरांवाला डोमिनेट कर रही थी, फिर वहां पर हमजा पठान आए जिन्होंने अपनी बैटिंग से पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। फिर अब्दुल्ला शिवारी की इन 2 विकेट्स ने वापसी कराई है और ये फुल लेंथ बॉल देखें, क्या जोश और जज्बे के साथ राइट ऑन द मनी की गई है बॉल। परफेक्ट ब्लॉक होल में आप कह सकते हैं इस बॉल को। ओवर का इख्तिताम 6 ओवर के इख्तिताम पर 112 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 12 गेंदे और 38 रन बाकी, 38 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए, और अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की अच्छी खासी तादाद। बाकी शुएब आपने जो बात की है कि ये मुकाबला थोड़ा क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, आखिरी गेंद तक जाने वाला है, तो यकीनन मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि हमजा पठान जो आज की शाम की सबसे अच्छी फॉर्म में गुजर रहे थे, उनका डिपार्चर किया है। और अब्दुल्ला शिनवारी थोड़े महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन वो काम कर दिया है जिस काम के लिए कप्तान ने तैमूर मिर्जा ने गेंद थमाया था। हमजा पठान जमान यूसुफ का विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जी हाँ, ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ग्राफ 4थे ओवर तक जो है वो बता रहा था कि टीम गुजरांवाला डोमिनेट करती है। फिर 5वां ओवर आया जिसमें आप एक बड़ी रो देख सकते हैं, वो हमजा पठान के उस ओवर में बैटिंग की थी, उन्होंने 31 रन आए थे। अब बॉलिंग पर आ चुके राणा मोहसिन, स्टार ऑलराउंडर ऑफ सादिकाबाद, पाकिस्तान टेप बॉल के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार है। सामना करेंगे मुजम्मिल। जी हाँ, मोहसिन इस बार किनारा किनारा, तैमूर मिर्जा से दूर गेंद। उस्ताद जरूर पीछे मौजूद थे, शागिर्द को गेंद ने बीट किया, लेकिन वसीम लेफ्टी पीछे मौजूद थे। आखिरी 12 गेंदों पर 31 रन बने हैं और 2 बड़े विकेट जो हैं वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आखिरी ओवर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कमर, स्टार्ट में पहली एक बॉल पर 13 रन दिए और उसके बाद क्या वापसी की अब्दुल्ला शिवारी ने। लग ऐसा रहा था कि उस ओवर में मैच जो है वो यकीनी तौर पर पलड़े में चला जाएगा, लेकिन उन 2 विकेट्स ने जो है वो जो प्रेशर जो बन गया था गुजरांवाला के अगेंस्ट, उनको वापसी करवाई। और इस ओवर में बहुत ही अच्छा आगाज किया राणा मोहसिन ने। जी हाँ, 11 गेंदे 37 रन रिक्वायर्ड हैं। इस बार शॉट खेला है, फील्डर मौजूद पीछे, फंबल जरूर होंगे लेकिन एक ही बासानी बनाने में कामयाब होंगे यकीनन। शुएब अगर ये जो आखिरी 4 गेंदें हैं इस सेकंड लास्ट ओवर की मुजम्मल कामों की खेलते हैं, 3
बड़े शॉट्स लगा जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है ये। आप देख सकते हैं कि एक हर ओवर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। और इस ओवर में मोमेंटम जो है अभी तक टीम गुजरावाला के हक में, क्योंकि राणा मोहसिन ने सिर्फ 2 रन दिए हैं, तीसरे बॉल के लिए तैयार है। अपने गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए राणा मोहसिन, ये बहुत अहम ओवर है, ये बहुत अहम ओवर है, इस मैच का निचोड़ है ये। राणा मोहसिन इस बार शॉट ऑफ 1 गेंद थी, रोल किया फिंगर्स को और एजाज अहमद जज्जा का ये इशारा कि ये वाइड बॉल है। तैमूर मिर्जा खुश हैं इस गेंद से, क्योंकि बैट्समैन को जो है वो डोमिनेट कर लिया था इस गेंद ने। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी जो खुशी की रीजन जो मुझे नजर आई है वो राणा मोहसिन का कॉन्फिडेंस है। वो बेखौफ बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही पुरएतमाद लग रहे हैं। जब बॉलर बिल्कुल अपने कूल माइंडसेट से बॉलिंग करता है तो यकीनी तौर पर बॉलर जो है वो अपनी उम्दा बॉलिंग का 100% पुट करता है। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरी 12 गेंदों पर महज 15 रन बनाए गए हैं, 2 विकेटें लूज की हैं टीएनएस की टीम ने। एक बार फिर से राणा मोहसिन तजर्बे से माला माल है, वेरिएशन पे अच्छा खासा असर करते हैं राणा मोहसिन। एक बार फिर से, लेकिन यहां पर असर किया मुजम्मल कामोकी ने और गेंद हवाओं को चीरती हुई ग्राउंड के उस पार जा पहुंचा। एक और फलक शगाफ छक्का स्टोनमैन, और ये आज की शाम का सबसे बड़ा बुलंद दोबाला छक्का लगाया है मुजम्मिल कामोकी ने। प्रॉपर मिडल किया, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लोड किया, पिकअप शॉट, हाफ स्वीप, हाफ पुल शॉट, ये गई है ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए मुजम्मिल कामोकी। शुएब, बैट स्विंग मुल्क पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो अरसलान अच्छी बात है और मुजम्मिल कामोकी हैं जिनका बैट स्विंग आउटस्टैंडिंग है और ये पावर पे अच्छा खासा असर करते हैं, ना कि टाइमिंग पे। अगला गेंद जी, इस बार पुल किया है फील्डर से दूर, एक और बाउंड्री यहां पर मुजम्मिल कामोकी। अनस्टॉपेबल बैटिंग, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी टीम तौसा शरीफ। मुजम्मिल कामोकी अपनी टीम के लिए जो है वो तने तनहा लड़ते हुए, स्टोन मैन इनको क्यों बोला जाता है उसका मुंह बोलता सबूत इनकी इस बैटिंग में आप देख सकते हैं। क्या उम्दा बॉलिंग की है राणा मोहसिन ने, लेकिन उतना ही जबरदस्त यहां पर जवाबी हमले किए हैं। और यहां पर सुपर बॉल का सिग्नल आ चुका है इजाज जज्जा की जानिब से। 8 बॉल्स बाकी हैं, 25 रन है। और आपने जिक्र किया इसी ओवर के स्टार्ट में कि अगर 2 बाउंड्रीज आ गई इस ओवर में तो मैच 2 से 3 बाउंड्रीज आ गई तो मैच दोबारा से जो है वो 50-50 की सिचुएशन पर आ जाएगा, और ये हो चुका है। अब ये सुपर बॉल को अब देखना है कि टीम तौसा और मुजम्मिल कामोकी किस हद तक फ्रूटफुली जो है वो साबित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है टीएनएस के लिए, मुजम्मिल कामोकी के लिए, और ये मेरे ख्याल से सही फैसला है मुजम्मिल का। सुपर बॉल, स्टोनमैन, oh, up he goes, another biggie out of the park. मुजम्मिल कामोकी 10 of the 10। अब एंजॉय करते हुए अपनी बैटिंग को, महसूस होते हुए वो खौफ का जो बुत था, वो जो प्रेशर था, उसको कोसों दूर भेज दिया है। और ये कमाल की बैटिंग करते हुए मीलों दूर जाएगी ये बॉल, क्योंकि जितनी जोर से ये बल्ला घुमाया है बहुत दूर गई है ये शॉट। जी हाँ, बिल्कुल, सच में 12 रन वाला शॉट था और ऊपर से सुपर बॉल भी था, तो इस शॉट पे 12 रन जो है वो हासिल किए मुजम्मिल कामोकी की टीएनएस तौसा। इस वक्त डोमिनेट कर रही है गुजरावाला की वासिफ स्पोर्ट्स को। इस बार भी हवा में और इस बार भी मीलों मील दूर, एक और छक्का मुजम्मिल कामोकी के बल्ले से, और ये बैकफुट को बैंड करके बैंग बैंग कर दिया है। ये तारे दिखा दिए हैं बॉलर को, और आसान खता हो चुके हैं यहां पर, क्योंकि 3 बाउंड्रीज इन अ रो आ चुकी हैं और
आई थिंक 31 रन हो चुके हैं, अब 19 रन बाकी है। बहुत बड़ा शॉट है, बहुत ही बुलंद वाला शॉट, और ये दुनिया टेप बॉल के सबसे लंबे छक्के लगाने वाले बैटर्स में शुमार है। आई बैग योर पार्डन। यहां पर 6 बॉल्स बाकी हैं और 7 रन्स बाकी हैं। 6 बॉल्स 7 रन्स बाकी। जी हाँ, आखिरी 6 गेंदे 7 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। इस बार सीधा खेले हैं और कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पर। एक और बाउंड्री यहां पर। जी हाँ, पहली बॉल पर 4 रन के लिए जो है वो खेल दिया है। 6 बॉल पर 7 रन चाहिए थे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। शॉट सिलेक्शन बहुत ही जबरदस्त, और राणा मोहसिन जो कि मौजूद थे स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पर रोकने में नाकाम रहे। 5 बॉल्स बाकी हैं, 3 रन बाकी हैं। आखिरी ओवर, पहला मैच टेप बॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान। ये अच्छा गेंद था, लेकिन यहां पर किनारा लगा, गेंद लेग स्टंप को टकराई, बेल्स गिरी और यूं बहुत देर के बाद कामयाबी मिली। 4 बॉल्स बाकी हैं और 3 रन बाकी हैं। कमर, ये देखें, ये मैंने बोला था कि आखिरी बॉल्स तक मैच जाएगा। ये आप मान लें, अब देखें ना कि पहला मैच है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप का और पहला ही जो है वो कांटेदार हो चुका है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह जियो के एक प्रोग्राम में हंसना मना है, वहां पर अमर बाबा जो है वो छाए हुए थे जब पाकिस्तान टीम ड्यूरिंग वर्ल्ड कप थी, तो आप भी कुछ वही समझ रहे हैं। बहरहाल आपकी जो बात है, प्रोडक्शन है, वो सच हुई है। आखिरी गेंद पर यहाँ पर भी सुपर ओवर का चांस बन सकता है शुएब। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की तरह रंग बदलना जानती है। 4 बॉल्स बाकी हैं, 3 रन बाकी है और बैटिंग के लिए आ चुके हैं बंटी, और यहाँ पर देखना है कि घंटी बजेगी टीम तोनसा शरीफ की जीत की घंटी बजेगी या फिर गुजरावाला तैमूर मिर्जा एंड कंपनी यहां से मैच जो कि बहुत ही नामुमकिन लग रहा है ले जाएंगे। जी हाँ, बंटी आए हैं विंग स्पोर्ट्स का बल्ला अपने हाथों में थामे हुए। 4 गेंदे 3 बाकी। अच्छा गेंद इस बार पैरों पर गेंद था, बिल्कुल 30 यार्ड के आसपास रहा ये गेंद। एक ही बार आसानी बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद बड़ा मुकाबला है जी। सिर्फ 2 रन की दूरी है शुएब। अगर ये गेंद डॉट हो जाता है तो यकीनन आपकी कही हुई बात जो है वो सच हो जाएगी, मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। लेकिन मुजम्मल कामों की ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस बार किनारा लगा और उम्मीदें दम तोड़ गई जब गेंद बल्ले के साथ टकराई। तैमूर मिर्जा जो विकेटों के पीछे खड़े थे, उनका ये इशारा यही बता रहा था कि तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो